Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. You are watching YouTube channel Real Life Study. This is the book of grade 6, News for Modern English, 3rd edition, unit number 11, Snakes on the Loose. Today we are going to solve full exercise of this unit. Page number 122. फर्स्ट ऑफ ऑल है कंप्रीहेंशन. कंप्रीहेंशन मीन समझ कर पढ़ना. कंप्रीहेंशन में कई सारे क्वेश्चन हैं जिनके मैं नोट बना चुकी हूँ और आपसे शेयर करूँगी. नेक्स्ट पेज पे है वर्किंग विद वर्ड्स, इसको भी मैं सॉल्व कर चुकी हूँ. लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, और नेक्स्ट पेज पे है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और लास्ट में है कंपोजिशन. कंपोजिशन तक के तमाम तर क्वेश्चन 1 by 1 सॉल्व है. वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में मिलेगा. फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. कैन यू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड ऑन द डे यू वर बोर्न. कैसे आप मालूम करेंगे, तलाश करेंगे कि जिस रोज़ आप पैदा हुए थे उस रोज़ क्या हुआ था. यू कैन फाइंड आउट अबाउट व्हाट हैपेंड ऑन द डे वर बोर्न बाय लुकिंग बैक थ्रू ओल्ड न्यूज़पेपर और सर्चिंग ऑन द इंटरनेट. उस रोज़, क्योंकि अखबार में भी शाया हो चुका होगा और इंटरनेट में भी उनके बारे में मालूमात होंगी, आपको पता चल जाएगा कि उस रोज़ और कौन कौन से वाक़यात हुए थे. बी क्वेश्चन है विच सिंगर डाइड. 16 सितंबर को कौन से सिंगर की डेथ हुई थी. ऑन 16 सितंबर 1977 ओपेरा सिंगर मारिया कालस एज्ड 53. यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ सिंगर का नाम लिख लें. सी क्वेश्चन है व्हाट इज़ वॉल स्ट्रीट एंड व्हाट हैपेंड देयर इन 1920. वॉल स्ट्रीट is a financial district in New York City. In 1920, a bomb explosion on Wall Street killed 38 people. Which tragic events occurred on 16 September during the years listed? कई सारे वाक़यात जो हैं वो 16 सितंबर को अकर हुए थे, रहनुमा हुए थे. The following tragic events occurred on 16 September in the years listed. 1920, a bomb on Wall Street kills 38 people. 1951, a stunt plane crashes in the USA, killing 19 people. 1978, an earthquake kills 26,000 people in Iran. 1986, a major fire in a gold mine in South Africa kills 175 miners. 2004, after causing havoc in Jamaica, Grenada and Cuba, Hurricane Ivan lashes the Gulf Coast of the USA, killing 45. 2007, a plane crash in Thailand causes 90 deaths. C question है where precisely is the village of Shijao. Shijao Township is in the Chongqing municipality in southwestern China. Next question, where the snakes captured or killed. Most of the snakes were captured or killed. Some are unaccounted for. G question है where were the snakes being kept, why and by whom. The snakes were being kept in an abandoned schoolhouse. They were being kept there in order to breed them so that they could be sold. A man named Sayong admitted to running the illegal breeding factory. H question है what is a tourniquet? How might it prove to be helpful in the case of snake bite? A tourniquet is a tight bandage to that temporarily stop the flow of blood. It might prove useful in the case of snake bite because it stops the venom spreading until anti-venom can be administered. Next question है who is Mr. Yan and how does he come into the report? Mr. Yan is mentioned in report 3 as a country official who gave a statement to say that no one had been injured and the majority of the snakes had been rounded up. These questions are more challenging. Discuss them first. Which report in your view is the best? Say why. कौन सी रिपोर्ट जो है वो आपकी नज़र में अच्छी है, बेस्ट है, और वजह भी बतानी है. आपको जो रिपोर्ट बेस्ट लगती है आप उसके बारे में लिख लें. मैंने भी इसका आंसर लिखा है. Report 3 is the best in my view because it provides more context and additional information such as the reaction of frightened villager and the potential need for educations on avoiding snake bites and treatment. It offers
A more comprehensive का मतलब है वसी, ज़्यादा, view of the situation compared to the other reports. Key question है, how do you think the breeder was given a break? What does it mean? The breeder were not penalized or arrested because the government considered it an accident and they chose to transfer the cobras to a legal breeding laboratory instead of punishing the breeder. Question number 2 है, read the 4 news again and then answer the following. Where were the snakes found? इसका आंसर देखें. The snake were found in and around the village of Shizhou in southwestern China, including outdoor toilets, kitchens and street. B question है, which report gave us some information about what to do if bitten by a snake? Report 3 provides information on what to do if bitten by a snake. C question है, what do you think is meant by however frightened villager might not be as forgiving as the government? Report 3 आंसर देखें. The villager may not be as forgiving as the government, indicating they might want stronger action taken in response to the cobra escape. D question है, in what ways are the heading of 4 reports different? What are the headings trying to tell the reader? The headings differ in tone, focus, but all aim to inform the reader about the cobra escape incident. Last question है, which report give us a good idea about why young decided to breed cobras? What reasons can you give? आंसर देखें. Report 4 gives a hint that young decided to breed cobras due to financial incentive. Incentive का मतलब है तरगीब, created by the demand for cobra meat, traditional medicines made from venom. इसके मैंने 2 आंसर लिखे हैं. दूसरा आंसर आप छोटा अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं. To high demand for cobra products. Answer the following questions with reference to context. It came up with the answer 12 April 1954. Question है, what came up with the answer and where? A computer programmed by a scientist in Cambridge came up with it. What was the question it was trying to answer? The question it was trying to answer was which day since 1900 was the most boring day? Question mark आगे लगाएं. Third question है, in what way was the answer ironic? The answer was ironic because now that day has become significant as a result of people knowing that nothing happened on that day. Some of them suggest that government officials had to convene them. Who made the suggestion? और इसी का second question है, why was the suggestion made? और third question है, what might they have been told at the meeting? Question का आंसर है the villagers. Second का आंसर है they were not forgiving as the government had been towards the illegal breeder. और third question का आंसर है they were told how to avoid being bitten and how to treat a wound if bitten. At the meeting, villagers may have been told how to avoid snake bites and what to do if bitten, including staying calm and seeking immediate treatment. Next page पे आ जाए. Join the following quotes and sentence opener to make sentences. Use the correct punctuation. हम example भी दी गई है. She said. तो ये क्या है? ये sentence कौन सा sentence है? Opener sentence है. It is frightening. ये quotation है. Opener sentence जैसे हम सेंटेंस स्टार्ट कर रहे होते हैं और फिर बताते हैं कि ये किसने कहा है, तो ये सेंटेंस का ओपनर हो गया. और कोटेशन किसे कहते हैं? कोटेशन अ ग्रुप ऑफ वर्ड टेकन फ्रॉम अ टेक्स्ट. कोई ऐसा वर्ड का ग्रुप जो हम किसी टेक्स्ट से या किसी स्पीच से और लें और रिपीटेड बाय समवन, जो किसी ने बोला हो, बाय समवन अदर देन द ओरिजिनल ऑथर और स्पीकर. यानी वो जुमला, वो अल्फाज जो हम किसी टेक्स्ट से, किसी पैराग्राफ से उठा के दोबारा लिखते हैं, रिपीट करते हैं, उस सेंटेंस को के स्टार्ट में और एंड में ये कॉमा जो मार्किंग हुई है, ये जो कॉमे लगाए गए हैं, ये 2 कॉमों को गौर से लिखें. इस तरह के सेंटेंस में इस तरह के कॉमे ज़रूर लगते हैं. सेंटेंस ओपनर कौन सा है और कोटेशन कौन से हैं? द रिपोर्ट स्टेट्स 160 कोबराज एस्केप. अब ये कोटेशन है, हमने इसकी मार्किंग करनी है, यहाँ कॉमा लगाएं. अब इन सेंटेंस को हमने कैसे लिखना है? द THE दा का जो स्टार्ट वाला टी है उसको कैपिटल लिखना है. द रिपोर्ट
स्टेट्स, यहाँ कॉमा लगाएं और यहाँ पे ये वाला कॉमा लगाएं स्टार्ट में और इस तरह का कॉमा एंड पे लगाएं और फुल स्टॉप लगाएं। एक एग्जांपल मैं यहाँ दे देती हूँ और इस तरह यहाँ पे कॉमे लगाएं। जो कोटेशन है वहाँ पे इस तरह के कॉमे लगाएं और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएं। और यहाँ जो वर्ड्स हैं यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखा, बाकी में कैपिटल लिखे हुए हैं, तो द का जो टी है वो उसको कैपिटल लिखें। नेक्स्ट बी है वर्किंग विद वर्ड्स, यानी लफ्ज़ों के साथ काम करना। यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हमने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट ऑलरेडी गिवन इन अ डिक्शनरी। सबसे पहले हमने इनकी मीनिंग्स को फाइंड करना है, क्योंकि जब तक आपको किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आते आप उस वर्ड का सेंटेंस भी नहीं बना सकते। वर्ड्स मीनिंग्स, ट्रेजेडी की मीन्स है उर्दू में सानेहा। ट्रेजेडी को उर्दू में सानेहा कहते हैं। वाक़या, इंग्लिश में इसका मीन लिखें सीरियस एंड ऑफन सैड इवेंट और सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड है अले द फियर, खौफ को दूर करें और इंग्लिश में मीन लिखें अले मीन्स टू रिड्यूस और रिलीफ। अलग अलग इंग्लिश में मैंने इसकी मीन लिखे। अले मीन्स टू रिड्यूस और रिलीफ एंड फियर इज़ एन अनप्लेजेंट इमोशन रिस्पॉन्स to a perceived threat or danger. Next word, terrorizing, causing extreme fear. Next word है significance, refers to the importance or meaningfulness of something, often based on its impact, relevance, मुताबिकत और influence in a particular context. इसकी मैंने कई सारे मीनिंग्स लिखे हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। उर्दू में इसकी मीनिंग है अहमियत। नेक्स्ट वर्ड है लोकेटिव सोर्स, मुनाफा बख्श ज़रिया, हाईली प्रॉफिटेबल इनकम और अपॉर्चुनिटी। अबेंडेंट, उर्दू में इसकी मीनिंग्स हैं छोड़ दिया। डिजर्टेड, डिजर्टेड का मतलब है वीरान। लेफ्ट एम्प्टी, खाली छोड़ना। राउंडेड अप, अरेस्ट और कैप्चर देम। आइडेंटिफाइड, शनाख्त किया। एस्टेब्लिश्ड हु और व्हाट समवन और समथिंग इज़। कन्वीन का मतलब है बुलाना। ब्रिंग और कम टुगेदर फॉर अ मीटिंग। और लास्ट वर्ड है इलिसिट ऑपरेशन का मतलब है गैर कानूनी ऑपरेशन। अनलॉफुल एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़। अब इनके जुमलों की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको इनकी मीनिंग समझ आ चुकी हूँ। फर्स्ट वर्ड है ट्रेजेडी, इसका सेंटेंस बनाएं। द कार एक्सीडेंट वॉज अ ट्रेजेडी रिजल्टिंग इन सीरियस इंजरीज। अले एंड फियर, द सूथिंग वर्ड्स ऑफ अ फ्रेंड can allay your fears and provide comfort in difficult times. Terrorizing, दहशतज़दा, इसका सेंटेंस बनाएं। The horror movie was so terrifying that it left me feeling truly terrorized. Significance, the teacher explained the significance of historical event in a way that made it easy to understand. Lucrative source, मुनाफा बख्श ज़रिया, starting a small online business can become a lucrative source of income over time. Abandoned, the playground was empty and abandoned on a rainy day. Rounded up, I rounded up my toys. Identified, she easily identified the red car in the parking lot. पार्किंग लॉट, गाड़ियाँ खड़ी करने की जो मखसूस जगह होती है उसको पार्किंग लॉट कहते हैं। कन्वीन, द स्टूडेंट विल कन्वीन इन द स्कूल ऑडिटोरियम फॉर द असेंबली। Illicit operation, illicit operations are illegal activities that are conducted in secret. Working with words में question number 2 है fill in the blanks with the appropriate words from the list below. Use each word once only. यहाँ हमने कुछ fill in the blanks दिए गए हैं और इन blanks में हमें इन्हीं word की putting करनी है। Vitamins and other nourishing foods help in dash the body defense system. इसमें कौन सा word आएगा? Boosting. First blank में आएगा boosting. Next, a dash is useful to stop flow of blood inside a limb. लिम्ब बोलते हैं उज़ू को। उज़ू यानी बॉडी का कोई हिस्सा जो होता है उसको लिम्ब बोलते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दे रही हूँ। अगर यहाँ पे LIMP आ जाए यानी लिम्प आ जाए, बी की जगह पी लगाओ तो उसकी मीनिंग फिर चेंज हो जाते हैं। उसका मतलब है लंगड़ा। सेकंड ब्लैंक में आएगा टॉर्निकेट। फर्स्ट में बूस्टिंग, सेकंड में टॉर्निकेट। सी, द एक्सीडेंट that occurred was a dash because the population of the village was dash. इसमें दो ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट वाले ब्लैंक में आएगा
कैटेस्ट्रोफे का मतलब है तबाही, और बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वॉज डेसिमेटेड का मतलब है तबाह। द फ्लड कॉस्ट ग्रेट डैश विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द टाउन, इस ब्लैंक में आएगा हैविक तबाही। नेक्स्ट, ऑल द डैश मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द विलेज वर क्लोज्ड डाउन एंड द ऑनर डैश, फर्स्ट ब्लैंक में लिखे एलिसिट, और नेक्स्ट दूसरी ब्लैंक में आएगा पेनलाइज्ड, इसका मतलब है गैर कानूनी। पेनलाइज्ड और पेनलाइज्ड का मतलब है सज़ा दी गई। लास्ट सेंटेंस है द बेस्ट एनिमल्स आर यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ डैश टू इंश्योर दैट फ्यूचर जनरेशन आर हार्डी, लास्ट वाले ब्लैंक में लिखें ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू द फॉलोइंग abbreviations stand for? 3 are used in the passage about snakes. एब्रीवेशन दिए गए हैं, हमने इसको फुल फॉर्म में लिखना है। मैं इसके नोट बना चुकी हूँ, आपसे भी शेयर करूँगी। PM हम टाइम के साथ यूज़ होता है, दोपहर के बाद के टाइम के लिए PM का इस्तेमाल होता है। पोस्ट मेरिडियम और PO एब्रीवेशन है पोस्ट ऑफिस, PRES से प्रेसिडेंट। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन REV एब्रीवेशन है रेवरेंट, और रेवरेंट का मतलब है काबिल एहतराम। AFP एजेंट्स फ्रांस प्रेस। SCI साइंस, SE ये कैपिटल। आप ये भी ध्यान रखें कि कौन से वर्ड जो हैं वो कैपिटल में लिखे जाते हैं और कौन से स्मॉल में लिखे जाते हैं। ये दोनों कैपिटल हैं। S साउथ और ईस्ट, ई से आता है ईस्ट, साउथ ईस्ट। SEPT सितंबर। SQ ये दोनों स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं और इससे आता है स्क्वायर। PG पेरेंटल गाइडेंस। SW साउथ वेस्ट। CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क। TUES ट्यूसडे। TV टेलीविज़न, और VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। क्या लर्निंग अबाउट लैंग्वेज में आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। प्रेपोजिशन क्या है? ये पार्ट ऑफ स्पीच है। इट शोज अ कनेक्शन बिटवीन टू नाउन्स इन द सेम सेंटेंस। प्रेपोजिशन क्या है? ये पार्ट ऑफ स्पीच है और ये कनेक्शन को जाहिर करता है किनके बीच में, जब दो नाउन एक ही सेंटेंस में यूज़ हुए हों उनके बीच का जो कनेक्शन होता है उसको शो करने के लिए प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल दी गई है, व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे इन हिस्ट्री। हेयर द वर्ड इन, इन क्या है? प्रेपोजिशन है। टेल अस द रिलेशनशिप और कनेक्शन बिटवीन। अब ये इन जो है, ये इन, ये कनेक्शन को, रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है किसके बीच में? डे और हिस्ट्री। हेयर आर सम प्रेपोजिशंस in, on, under, of, above, across, through, beyond, among, between, over, behind, beside, with, down। preposition के लिए हमें यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं, इनको आप याद भी कर लें, आपके आगे भी काम आएंगे। Some prepositions are made of more than one word। कुछ preposition जो है वो एक से ज़्यादा अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। These compound compositions also show us the location of something or explain how two things are linked। अब यहाँ पे हमें सिंगल जो वर्ड्स थे वो प्रेपोजिशन में जो यूज़ होते हैं उनके बारे में समझाया गया है, और नेक्स्ट हमें एक से ज़्यादा वर्ड पर मुश्तमिल प्रेपोजिशन भी होते हैं जिनमें ये वर्ड्स शामिल हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं ये। इसी के मुतालिक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पिक आउट द प्रेपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से व्हाट नाउन्स और प्रोनाउंस दे कनेक्ट। द डॉग चेस्ड द कैट अप अ ट्री। चेस्ड का मतलब है पीछा किया, डॉग ने पीछा किया कैट का अप अ ट्री। प्रेपोजिशन के तौर पर अप यूज़ हुआ है और कनेक्ट्स कैट और ट्री, ये कनेक्ट्स यूज़ हुए हैं। यहाँ मैं इस क्वेश्चन के नोट भी बना चुकी हूँ। फर्स्ट सेंटेंस में अप जो है वो प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ हुआ है, कनेक्ट्स है कैट एंड ट्री। सेकंड सेंटेंस में प्रेपोजिशन के तौर पे जो यूज़ हुआ है वो है इनटू और कनेक्ट्स है बस एंड गिराज। और थर्ड सेंटेंस में प्रेपोजिशन है विद, टू, कनेक्ट्स अली एंड फैज, अली एंड सिनेमा। और फोर्थ सेंटेंस में प्रेपोजिशन है अंडर, कनेक्ट्स है थर्मामीटर एंड टंग। और लास्ट सेंटेंस में प्रेपोजिशन है बिटवीन, ऑन
connects है train and town, train and Wednesday. Adjective and prepositions. इसके मुतालिक ये क्वेश्चन है, complete the following sentences by filling in the blanks with the correct preposition. हमने यहाँ पे correct preposition का यूज़ करना है. The sad story was very painful. Dash the child's mother. Second sentence है, the handsome actor was surrounded by his admirers. यहाँ पे लिखें by. C sentence है, the children were full dash of hope that the party would not be cancelled. Akram was impatient with the delay of the train. और E sentence है, I visited London last year accompanied dash a friend. यहाँ पे लिखें by. F sentence है, the headmaster asked the boy if he was aware dash the dangers of smoking, of the dangers of smoking. और लास्ट सेंटेंस में भी ऑफ लिखें. नेक्स्ट पेज पे आ जाए. 125 पे है नाउन. नाउन कहते हैं इसम को, किसी नाम को कहते हैं. अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग. द एलिफेंट रोज इट्स फीट. इसमें एलिफेंट और फीट दोनों क्या है? नाउन है. नेक्स्ट सेंटेंस है, द रोज ऑन द बुश वॉज लार्ज. रोज और बुश ये दोनों नाउन है. सी सेंटेंस में द रोज बुश ग्रू इन द बैक गार्डन. रोज बुश और गार्डन. द वाटर वॉज टेकन फ्रॉम द टैंक. वाटर और टैंक इस सेंटेंस में नाउन है. इट इज़ द गार्डनर हु हैज़ टू वाटर द प्लांट. गार्डनर प्लांट्स नाउन है. द वाटर टैंक इज़ नियर द वॉल. वाटर टैंक और वॉल ये भी इसमें नाउन है. लिसनिंग एंड स्पीकिंग सुनना और बोलना में दो क्वेश्चन दिए गए हैं. हैव यू एवर सीन अ स्नेक इन द ओपन? व्हाट हैपन? टेल द अदर इन द क्लास. ये क्लास एक्टिविटी है, ऑरल एक्टिविटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. समवन हैज़ बीन बिटन बाय द स्नेक. यू आर एट द सीन ऑफ द इंसिडेंट. व्हाट विल यू डू? स्पीक अबाउट हाउ यू विल रिएक्ट एंड व्हाट यू माइट डू टू हेल्प. आंसर देखते हैं. इफ समवन हैज़ बीन बिटन बाय अ स्नेक एंड आई एम at the scene of my immediate reaction would be to ensure the person's safety and provide first aid while waiting the professional medical help. Heading they ensure safety. First, I would make sure that the area is safe from any other potential dangers such as snakes. Call for help. I would immediately call emergency services. Immobilize the victim. I advise the person to remain as still as possible to slow the spread of venom through the bloodstream. If possible, I would gently immobilize bitten limb with a splint bandage. Note the snake. If it's safe to do so, I'd try to remember the snake's color, size, and marking, as information can help medical professionals determine the appropriate treatment. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन ई है कंपोजिशन. कंपोजिशन की तरफ बढ़ने से पहले अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें. मेरी ये वीडियो आपके काम आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकेगी. वीडियो आपकी सहूलियत के लिए बनती है. क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सम टाइम अ स्नेक विल बाइट इन सेल्फ डिफेंस इफ़ इट इज़ डिस्टर्ब. बाज़ औक़ात क्या होता है कि स्नेक अगर उसको डिस्टर्ब किया जाए तो अपने सेल्फ डिफेंस में भी बाइट कर देता है, काटता है. फाइंड आउट 5 पॉइजनस स्नेक्स that can be found in the subcontinent. Display the information about the snake in a table or poster. Include how venomous it is. Venomous बोलते हैं जहरीला. What to do if someone is bitten. Its size, color, habitat और more. 5 स्नेक के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है. मैं इसके नोट बना चुकी हूँ. आप उन्हीं नोट से इंफॉर्मेशन लेके क्लास के लिए पोस्टर बना लें. इंडियन कोबरा हाईली वेनमस. Seek immediate medical help if bitten. Size up to 5 feet. कलर जो है उसका ब्राउन और ब्लैक है. Habitat forest, fields, near water. Indian crud highly venomous, neurotoxic venom. Urgent medical assistance needed if bitten. Size 3-4 feet. Glossy black with white bands. Habitat rural areas, farmlands. Resolus viper highly venomous. Immediate medical treatment necessary if bitten. Size 4-5 feet.
pale brown with dark V-shaped marking. और next, saw-scaled viper, highly venomous. Size है इसका 1 to 5 feet, grayish to brown with a saw-scale pattern. Habitat, dry, sandy, rocky regions. और लास्ट स्नेक के बारे में लिखें, किंग कोबरा, एक्सट्रीमली venomous, neurotoxic venom, immediate medical care is crucial if bitten. Size 12 to 18 feet, olive green to black pale yellow bands. Habitat, dense forests, rain forest. इस वीडियो में यूनिट नंबर 11 स्नेक ऑन द लूज की फुल एक्सरसाइज 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हेरिटेज ऑफ ट्रीज, ये एक पोएम है, इसकी फुल एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।